Good afternoon, everyone. Today we will spend a good amount of time in solving problems that you guys are facing. More is on. So what I'll do, this is a spotlight and I'll remove it. So symbol is gone. This means that I have not added a light. Okay. Let's consider a case where people have added the light, but it's not coming up. So there is something called range and something called intensity and intensity multiplier. This intensity multiplier, because of that, we have some warning here. What I'll do is I'll make it 0 and the warning is gone. Secondly, there's something called intensity. If I increase the intensity, you can see how bright the light is. And if I decrease it, the light is gone. I'll make it 0, the light is gone. So for those whom it is not working, they should check this part, or maybe first they should make it 10 and see if they are able to see anything at all or not. Wait. So there are other things as well. So just try to make it 10 and still it is not working for you, intensity. Make it 0 and make this 10, still not working. Then we'll see other things. There is something called this spotlight, spot angle. If I reduce it, uh, increase it also, then also it is working kind of. Okay. So you can play with this also and this range. Okay. This range, if I make it a lot smaller, the light is kind of disappearing. Okay. So there are three things. This is first is this angle, sorry, range, which you can like keep it at 10. Spot angle, maybe keep it around 100. And this intensity, whoever are not able to see it, try to make it 10 also, if 10 is. हाँ, एक प्रॉब्लम था जो कि लास्ट टाइम एवरीवन वाज आस्किंग या फिर एवरीवन वाज कंफ्यूज्ड कि not everyone, some of you, like you want to move forward but your car is going backward. Even if you have put the direction as forward, the car is going backward. So I have this car and it has a script which is car auto move, and if I play it. Excuse me, sir. Sir, I was disconnected. Sir, can you repeat what you were saying? Yeah, so nothing much. Two things are happening. This I like a lot. I did, sir. एक सेकेंड, ठीक है, गुड. Is it work? Still not working? Sir, working, sir. Cool. All good. Good. ठीक है. So यहाँ पे एक तो स्ट्रीट लाइट जो नीचे गिर जा रहा है बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी ये जो कार है ग्रीन कार, इसमें कार ऑटो मूव है और इसमें स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वो इसे फॉरवर्ड मूव करने का स्क्रिप्ट लिखा हुआ है विद अ स्पीड फॉरवर्ड. एंड स्पीड फॉरवर्ड वी हैव 4. So if I start the game, कार मूव हो रहा है फॉरवर्ड, ठीक है, दिस इज गुड. बट कुछ लोग का प्रॉब्लम ये था कि मेरा कार जो है फॉरवर्ड लिखने के बाद ही पीछे जा रहा है. ठीक है. एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस फॉरवर्ड का मतलब क्या है? डज दिस मीन्स दिस डायरेक्शन और बैक और लेफ्ट और राइट? व्हाट डज दिस फॉरवर्ड मीन्स? सो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है ये जो z दिख रहा है ना तुम लोग को, z का एंगल, z इज दिस टुवर्ड दिस. सो फॉरवर्ड मीन्स टुवर्ड्स दिस एंगल. दिस इज राइट. और अगर अनफॉर्चुनेटली अगर तुमने सीन को घुमा के ऐसा कर दिया है कि z is now facing this direction towards me or towards back. If z is facing towards back and you set the camera along with it. अब मैं कैमरा यहाँ पे इसके along सेट कर देता हूँ, जिसका तरीका होता है I will select this and game object align with view. अब जो है ये कार, और
ठीक है, since z is towards this, so car will move this direction, in this direction. And इस कार में रोटेशन भी है क्या? No, rotation is 0 0 0. So rotation is 0 0 0. Then car will move towards z direction. Forward means towards z direction. So it is moving towards me. इसे भी हटा, ठीक है. तो forward means towards z, and so that's why मैं हमेशा ऐसे ही रखता हूँ अपना कॉन्फ़िगरेशन, लगभग ऐसा. ये फॉरवर्ड रहेगा या फिर ऐसे, ताकि z is forward and this is right side. ठीक है, z जो है हमेशा मैं आगे रखता हूँ, पीछे नहीं. ओके. सेकेंडली एक और प्रॉब्लम था जो कि स्ट्रीट लाइट के केस में फिर से लोगों ने फेस किया, वो ये था, मैंने बताया था पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट. अब समवन वांटेड टू move this street light, so what he did, maybe he selected the street light like this and he moved. Okay, this was right selection, maybe I'll select this and he moved. यार ये सही से कैसे काम कर जा रहा है? Okay, now select. This time I made a wrong selection. So ये मैंने select किया, अब मैं इसे move कर रहा हूँ and somehow I think कि पूरा का पूरा street light move करे, but पूरा street light move नहीं हुआ. बेस वहीं पे रह गया, ये यहाँ पे रह गया. प्लेटफॉर्म्स. तो ऐसा अगर होता है मेरे साथ, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल Z करूंगा. यस, पहले तो मैं अंडू करूंगा. दूसरी बात, तुम्हें अगर इसे मूव करना है तो कभी भी यहाँ से सिलेक्शन, डोंट डू सिलेक्शन फ्रॉम हियर. यहाँ पे जाओ स्कीम में और इसे मिनिमाइज करो एंड सेलेक्ट इट फ्रॉम हियर. सर मेरा पता नहीं क्यों, पर मैं अगर ऐसे ही सेलेक्ट करता हूँ तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है. हाँ, तो तुम्हें यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसे सिलेक्ट करते हो तो ये पेरेंट एंड पेरेंट के अंदर के सारे चाइल्ड सेलेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ पेरेंट सेलेक्ट करना है. अब तुम मूव करोगे तो पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट मूव होगा. एक्सक्यूज मी सर, सिर्फ उसका पोल या एक पार्ट नहीं, पूरा मूव होगा. तो तुम्हें सेलेक्ट हमेशा ये करना है इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम हियर. जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे दिख रहा होगा सिर्फ पोल सिलेक्ट हुआ है. एक्सक्यूज मी सर. वेट, सो इसलिए इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम द स्क्रीन, सेलेक्ट फ्रॉम द इंस्पेक्टर दिस हायरार्की विंडो. तो मैंने स्ट्रीट लाइट सेलेक्ट किया है, अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद आई विल मूव. अगर मुझे रोटेट भी करना है सिर्फ पूरी स्ट्रीट लाइट को, सो आई हैव टू सेलेक्ट दिस एंड देन डू इट. हाँ, लेट्स गो अहेड. यस. So what is the word in the code for backward? ठीक है, good questions, all of them. If you notice one thing, if you see the street lights, they are glowing, and you can see some glow here also. Like after the light. car lights. Not car lights, like street lights. If you see, यहाँ से ऐसे car lights का भी, if you can see, car lights, cars are also glowing. Whatever light is coming, and this and these headlights also. इसे better तरीका दिखाने का is to move the camera there. So if you see in the scene game view, so you have this some glow here. Yes sir. And if you check your street light, this glow will not be there. Yes sir. Okay. Not there sir. And secondly, there are headlights in car. Street light. And if you see this, this is also glowing, like some real street light who is lit on. But in your case, if you see your street light, they are not glowing in your case, like in my case also. If I see this street light, so there is no light coming out of the screen. So I mean, you can check that. Okay. So this light is different than whatever light we have.
but it works in the same way. It gives some light to the road. I will remove it. And one more major difference is this car. Wait. So this car, I think, when we imported this car, one of you said that this car looked very fancy when we checked in the video or photo when we were importing the assets. So in the images they look very fancy, but they are not. They are looking just okay. But if you see this car, this looks equally fancy. And in our case, Yes, sir. From in our back it case, is. in our case, if you see this lights, so they are kind of orange or some, not orange, some reddish Light color. red. But here it is transparent and we can see the light, and also front light also you can see that. So there are many things and we can improve them. So I'll show you. Sir? How that atmosphere is coming over there above the road? This atmosphere, okay. This is another thing. So we'll check it. Yes. Okay. I can move forward and backward. तो आज हम लोग ये जो जितनी भी चीजें आ रही हैं, अगर तुम लोग देखो जैसे मैं गेम स्टार्ट करता हूँ तब आता है। तो अगर मुझे कोई ये काम कहता कि ये तो रोड इनफाइनाइट टाइप का दिख रहा है, इतना बड़ा रोड दिख रहा है, और कोई कहता कि इतने सारे स्ट्रीट लाइट्स लगाओ, होर्डिंग्स लगाओ लेफ्ट एंड राइट, एंड जो रोड के बीच में जो ब्लॉकर्स है या डिवाइडर कह लो वो भी लगाओ, तो शायद ये मेरे लिए बहुत पेनफुल टास्क रहता। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये इंस्टेंट उल्टा हो गया, ठीक है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं ठीक करूंगा इसे। बट हाँ, इतनी सारी चीजें मुझे कोई लगाने को कहता तो ये पेनफुल टास्क होता। और यहाँ पे देखो तो आपने बस कॉपी और पेस्ट किया ना सर? नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। कॉपी पेस्ट क्या होता, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, the controlled is kind of copy paste here, but still you have to reposition it. Street lights, hoardings, dividers and all गेम स्टार्ट होता है तब आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने कोड लिख रखा है कि गेम के स्टार्ट में ये सारी चीजें क्रिएट करो एंड पोजीशन इट, ठीक है, तो कोड से आ रहा है एंड इसलिए हम लोग कोडिंग। यस, सो ठीक है, यहाँ पे जितना भी है रोड में जितने प्रॉप्स आ रहे हैं वो सारे कोड से लाया गया है, क्योंकि मुझे कोई कहता है खुद से हाथों से लगाओ तो मैं सब थक जाता है इतना बड़ा रोड पे वो सारी चीजें लगाते एंड आई वेरी सून विल स्टार्ट हेटिंग गेम्स। गेम बनाना इतना बकवास, मतलब इतना बकवास काम है, बोरिंग काम है, बट बोरिंग नहीं है। विद द हेल्प ऑफ कोडिंग यू कैन मेक इट इजियर। एंड अगर तुम लोग कार रेसिंग गेम खेलते होगे तो कई बार रेसिंग में, मतलब नॉर्मल रेसिंग वाले गेम में कई सारे कार्स या बाइक रेसिंग में भी पीछे से कार आता है या बाइक आता है, और उससे तुम्हें टकराना भी नहीं होता। कई केस में टकराओगे तो गिर जाओगे। बाइक रेसिंग, मोबाइल के कई सारे बाइक रेसिंग गेम में ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ वैसा ही कुछ मैंने कॉन्सेप्ट किया। यहाँ भी मैंने कोड से ऐसा किया है कि हर कुछ देर बाद कोई कार आ रहा है, बट अभी के लिए मैंने दूसरे लेन में रखा है, अपने लेन में नहीं रखा उसे। मैं उसे अपने भी लेन में रख सकता हूँ और मुझे उससे अवॉइड करना होगा, वो जहां भी आ रहा है उससे बचना होगा। तो ये सारा काम कोड से हो रहा है, विच वी विल लर्न वेरी सून। उसके बाद यहाँ पे कुछ काफी फैंसी स्टफ्स हैं। पहले तो ये एनवायरनमेंट है जो कि बहुत अच्छा है, चांद जैसा कुछ ऊपर में दिख रहा है, या फिर सूरज चांद ही होगा बड़ा सा, मून लाइटिंग टाइप का है। रोड भी बहुत फैंसी है एंड रोड के अराउंड जो ऐसा बना हुआ है, मे बी रफ रोड है या फिर ठीक ऐसा है। ये मैंने बनाया कैसे? अनफॉर्चुनेटली ये मैंने बहुत आसानी से बनाया। जानते हो कैसे? मैं गूगल किया रोड टेक्सचर और यहाँ से मैंने ये इमेज जो है रोड टेक्सचर मैंने गूगल किया तो ऐसे बहुत सारी इमेज है। मैंने 2 इमेज उठाई, एक तो ये इमेज, ये भी मुझे अच्छा लगा, और दूसरा मैंने ये इमेज उठाया। मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने इस पर क्लिक किया रोड टेक्सचर सर्च करने के बाद, एंड इस पे जाके मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैंने इसे न्यू टैब में खोल दिया। तो ये मैंने गूगल किया गूगल में, और यहाँ पे ऑल रिजल्ट्स छोड़ के मैं इमेज रिजल्ट पे चला गया। इमेज रिजल्ट पे जाके यहाँ पे ये इमेज मुझे पसंद है तो मैंने इस पर क्लिक किया, फिर मैंने इस पर राइट क्लिक किया
और ये ऑप्शन ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मैंने सेट किया और ये इमेज यहाँ पे खुल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर मुझे करना क्या, फिर से राइट क्लिक करना और यहाँ पे ऑप्शन है सेव इमेज एज, चलो कर लेते हैं। और मैंने इसका नाम शायद मैंने इसे सेव कर लिया ऑलरेडी, और मैंने इसका नाम दिया था रोड कॉन्क्रीट, इस नाम से मैंने सेव कर लिया, जेपीईजी इमेज फाइल है। ठीक है, तो ये मैंने एक इमेज ऐसे सेव कर लिया था नाम देके, सेव पे क्लिक करके। सिमिलरली उसके जस्ट नीचे ये दूसरा इमेज है, ये भी मुझे अच्छा लग गया था, मैंने इस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये क्लिक करते ही ये ऐसा खुल के आ गया। और फिर इस इमेज पे मैंने राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, और इसको मैंने सेव कर लिया रोड पेंटेड नाम से। ठीक है, मैं सबसे पहले एक नया सीन बना लेता हूँ, create scene and I'll call it night mode, night scene. Just watch it and it will be easier for you. तो अभी सिर्फ देखना है, नाइट सीन खोल देते हैं, पूरा का पूरा खाली है, आइसोमेट्रिक नहीं चाहिए। I like this perspective view with the set this side and I will add a plane here, plane, and I'll make this 10. ये मेरा कैमरा है, मैं इस कैमरे को थोड़ा सा पीछे, अब मैंने किया क्या, कैमरा को थोड़ा पीछे कर दिया है। कैमरा बाय डिफॉल्ट इट कम्स समवेयर हियर, मेड इट, मैंने पीछे किया उसे, उसका पोजीशन मैंने नया सेट कर दिया -50, y is 4 and x is 8, so this is my camera position now। ठीक है, ये मेरा प्लेन था, नॉर्मल से मैंने रीस्केल किया, इसका साइज मैंने 10 कर दिया। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे मटेरियल्स है जो कि हमने मटेरियल्स बनाया था पहले, सीन 2 है, स्क्रिप्ट्स है बहुत सारे। ओके, इसमें मैं एक फोल्डर बनाऊंगा और assets folder में I'll create a folder, I'll give a name to it, I'll call it textures। इसका नाम मैं इमेज भी रख सकता था बट textures। ठीक है, रोड टेक्सचर मैंने सर्च किया, यहाँ पे बहुत सारे इमेज दिख रहे हैं, मैं ऑल पे ना जाके इमेज टैब पे चला जा रहा हूँ। I will choose this one, open image in new tab। Okay, I didn't ask you to do। अभी के लिए सिर्फ देखो, ये रोड आ गया, इस रोड को अभी हम लोग सेव इमेज करते हैं, इसका नाम क्या है, डेस्कटॉप पे डाउन 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और पिक्चर्स यहाँ मैं किसी के नाम से सेव कर लेता हूँ, आई विल नॉट चेंज द नेम। नाउ वंस डाउनलोडेड सो इट इज इन फोल्डर एंड अब मैं इसे थोड़ा सा मैंने विंडो छोटा किया है। ठीक है, अब मैं इसे टेक्सचर फोल्डर जो है उसे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये ड्रॉप हो चुका है। अब देखो क्या, अभी तक तुम लोग जो मटेरियल्स बनाए थे, लाल हरा पीला बना रहे थे, सिर्फ एक सिंगल कलर का बन रहा था। अब एक नया मटेरियल मैं बनाऊंगा, I'll call it road painted मटेरियल, इसका नाम देता हूँ मैं, I'll call it main road, कुछ भी मैंने नाम दे दिया ढंग का रीडेबल। और इसमें इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कलर टू इट, अब हम लोग इसमें एक इमेज डालने वाले हैं। इमेज डालने का तरीका क्या होता है, एल्बिडो में हम लोग कलर डालते थे, एल्बिडो के जस्ट बगल में तुम एक सर्कल देख रहे हो, सर्कल पे क्लिक कर दो। सर्कल पे क्लिक करते ही तुम्हारे प्रोजेक्ट में जितने भी इमेजेस हैं वो सारे खुल के आ जाएंगे, जिसमें से मेरा रोड भी आ रहा है, और मैं यहाँ से रोड सेलेक्ट कर लूंगा। अब इस देखा जाए इस मटेरियल को तो इसका कुछ शेप रोड जैसा जो भी इमेज था वैसा बन चुका है। Sir, from where you got albedo? Sorry? Sir, from where you got albedo? हाँ, ये अल्बीडो हमेशा से था, तुम लोग उसमें यहाँ पे कलर सिलेक्ट करते थे। अल्बीडो के जस्ट बगल में ये सर्कल है, सर्कल के पास डॉट है, सो तुम्हें उस सर्कल के पे, ठीक है, यहाँ पे मैं मटेरियल बनाने जा रहा हूँ, मटेरियल क्रिएट पे मैं गया, मटेरियल पे मैं गया, मटेरियल का नाम मैंने दे दिया मेन रोड।
ये मटेरियल बन गया। इसमें हम लोग हमेशा यहाँ पे एल्बिडो के बगल में जो कलर था कलर सेट कर देते थे। इस बार हम लोग कलर सेट नहीं करने वाले। इस बार एल्बिडो के बगल में एक सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इमेजेस खुल के आते हैं। उसमें से मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। ये मेरा मेन रोड मटेरियल बन चुका है। अब मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो फिर से वही खिंचा हुआ लगभग इमेज यहाँ पे आ रहा है। वैसा रोड नहीं आ रहा है जैसा हमने रोड वहां पे दिखा था, इमेज खिंचा हुआ सा आ रहा है। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? तो इसका तरीका ये है, एक टाइलिंग ऑप्शन होता है। अगर हम लोग मटेरियल्स पे में जाओगे, मटेरियल्स को मैंने सिलेक्ट किया तो इंस्पेक्टर में मेन रोड नाम का मटेरियल खुल गया है। इसमें टाइलिंग नाम का ऑप्शन है। टाइलिंग ऑप्शन कहता है कि एक इमेज को तुम मल्टीपल बार टाइल कर सकते हो। तो इस एक इमेज को अगर मैं y में लिख देता हूँ 20, तो सेम इमेज 20 टाइम्स टाइल्ड हो गया। एक के बाद एक के बाद इमेजेस टाइल्ड हो गए हैं। और अब तुम लोग देखोगे व्हाइट वाला तो कई सारा व्हाइट्स आ चुका है। अगर मैं इसे 10 करता हूँ, चलो एक किया तो सिर्फ एक इमेज ही खिंच के आ गया, पूरा एक ही इमेज खिंच के आ गया। अगर मैं इसे 10 करता हूँ तो 10 इमेजेस आ गया, वन बाय वन एक ही इमेज बार बार टाइल्ड हो गया है। एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, 10 इमेजेस ऐसे आ गए। सेम इमेज 10 बार रिपीट हुआ है। अगर मैं टाइलिंग में 10 y का वैल्यू 10 देता हूँ तो इमेज 10 बार रिपीट हो रहा है सेम इमेज। अगर मैं अगर x का वैल्यू 1 है, अगर मैं इसे 2 कर देता हूँ तो सेम इमेज 2 बार रिपीट होगा। और मेरा रोड ऐसा बन गया जो तुम मेरे गेम में देख रहे थे। सो x 2 रखा है मैंने, तो ये 2 रोड दिख रहा है जैसे हाईवे में रहता है, एक आगे जाने वाला, एक मतलब एक इस तरफ की गाड़ियों के लिए, दूसरी तरफ गाड़ियों के लिए। अगर मैं इसे 1 करता हूँ तो ये एक इमेज हो जाएगा, मतलब x के डायरेक्शन में। और y को भी मैं 1 कर देता हूँ तो पूरा एक इमेज स्ट्रेच्ड आउट रहेगा, जिससे मेरा रोड बहुत सुंदर नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं इसे अभी के लिए 10 कर लेता हूँ और इसका वैल्यू 2 कर लेता हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा रोड आ चुका है। अब मैं सर चाहता हूँ हम कि रोड जितना बहुत बड़ा है। सर जो x का वैल्यू है हम जितना चाहिए उतना कर सकते हैं। यस, 4 करेंगे तो ये 4 वे लेन बन चुका है। अगर किसी को सर ऐसा वो करना है देखने के जैसे लिए हो रही है उसकी। x का वैल्यू मैं बढ़ा दे रहा हूँ, मैंने डबल कर दिया तो मस्त ये 4 वे लेन लगभग बन चुका है। और भी बड़ा कर सकते हैं, पर ठीक है अभी के लिए हम लोग 1 वे लेन ही रखेंगे और मटेरियल में x का वैल्यू 2 रख देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं इसका y जो है, मैं इसका जो रोड है और बड़ा कर रहा हूँ। मैं इसका साइज 20 कर दे रहा हूँ और मैं कैमरा को पीछे और पीछे ले जाऊँ। मैं कैमरा को 100 -100 पे पहुंचा देता हूँ, -100। ठीक है, तो मेरा रोड काफी बड़ा बन चुका है। अब जो है ये फिर से ये इमेज थोड़ा सा फटा हुआ लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट लग रहा है, क्योंकि y मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ भी मैं y बढ़ा के 20 कर देता हूँ। तो ये 20 इमेजेस आ चुके हैं यहाँ पे और ये थोड़ा बेटर है। चलो जब तक तुम लोग ये कर रहे हो, मैं सेम चीज रिपीट करने जा रहा हूँ। मैं एक दूसरा इमेज डाउनलोड करने जा रहा हूँ, या फिर देख लो एक बार और फिर तुम लोग करते रहना। जैसे कि ये है 9x रोड, ठीक है, ये इमेज है। फिर से मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा, जो कि पिक्चर्स फोल्डर में जा रहा है, डार्क रोड टेक्सचर समथिंग। ये डाउनलोड हो चुका है और मैं इसे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। तो इन फोल्डर, ये यहाँ पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे टेक्सचर फोल्डर में जाके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मैं एक दूसरा रोड मटेरियल बनाने जा रहा हूँ, तो इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर दूंगा मैं। मेन रोड 1 बन के आ गया है। पहले मैं इसे नेम कर देता हूँ, इसका नाम मैंने रोड साइड दे दिया। ठीक है, रोड साइड में फिर से एल्बिडो पे जाके, एल्बिडो पे इस बार मैं ये सिलेक्ट करूंगा, जो कि रोड साइड जो भी है ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं एक और प्लेन ऐड करूंगा 3D, और फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज मैं इसे कॉपी पेस्ट करूंगा, कंट्रोल डी। एक और प्लेन ऐड हो चुका है। अब इसका जो x है which will be 2 times of this thing। ओके, कुछ तो अजीब सा हो गया।
और इसका जो मटेरियल है जो कि मेन रोड है, मेन रोड हटा के मुझे रोड साइड इस पे डालना है। तो गलत हो रहा है क्या? ओके तो शायद वो रोड पेंटेड डुप्लीकेट हुआ है। ठीक है, मैं इस रोड को थोड़ा ऊपर या नीचे ऊपर कर लेता हूँ। दूसरे रोड को मैंने थोड़ा ऊपर कर लिया। x is 0, y मैंने ऊपर उठा दिया इसे। फिर से सेव कर लो अगर खो गया तो। अब मैं इस पे ये डाल रहा हूँ, तुम मेरा स्क्रीन देख लो एक बार और फिर वीडियो से फॉलो कर लेना अगर लैग हो रहा है तो। ये मैंने इस पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके नीचे मेन रोड है। अब मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। अब थोड़ा सर बेटर लग रहा है। सर इसको सर आपने वो किसी मटेरियल में डाला? यस, इसको मैंने दूसरा मटेरियल डाला है जो मैंने रोड साइड मैंने बनाया था, रोड साइड नाम का। फिर उस पे एल्बिडो पे जाके सेम वो इमेज, दूसरा इमेज मैंने उठा लिया। अब वो इमेज मैंने इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मटेरियल लगा दिया, ठीक है। अब ये रोड का थोड़ा सा साइड सा दिख रहा है, थोड़ा सा और Sir, you have added Four both कर the material. यस, वन मटेरियल टू वन रोड एंड अनदर मटेरियल टू अनदर रोड। अब एक काम करता हूँ, मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ रोड। रोड में ये एक रोड है जिसका पोजीशन x0 y0 z0 एंड 1 1 20 है। इसको मैं ड्रैग करके इसमें डाल दे रहा हूँ। दूसरा रोड है जिसका 4 है 1 है। इसका हाइट जो है ये -0.4 है। -0.4 कितना ज्यादा होता है, कितना का डिफरेंस हो रहा है, बट फॉर नाउ वी विल कीप। नहीं, ये काफी ऊंचा हो जा रहा है मेरे ख्याल से, तो मैं इसे -1 करके देखता हूँ। -1 ऑल्सो लुक्स गुड, ठीक है। तो मैंने इस रोड को इस प्लेन के जस्ट नीचे रखा है, तो इसलिए इसका हाइट 0.1 नीचे कर दिया है, इससे -1। अब ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और मेरा हाईवे लगभग तैयार है। ये हाईवे सर लगभग आपने तैयार है। बनाया तो एक ही प्लेन है सर, पर वहाँ दो है ना, मैंने 2 एक प्लेन लेफ्ट बनाया साइड है। और दूसरा राइट साइड। हाँ, उसके वो नीचे है, उसका साइज काफी बड़ा है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे इसका साइज काफी बड़ा है, इसलिए लेफ्ट और राइट दोनों साइड दिख रहा है। ओके सर। ठीक है, तो ये मेरा हाईवे रोड बन चुका है। तो तुम लोग को दिख रहा होगा कितनी आसानी से हाईवे बन चुका है। किसी ने पूछा था वो ब्लू एनवायरनमेंट कैसे आ रहा है। ब्लू एनवायरनमेंट लाने का एक कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिटी में उसे कहते हैं स्काई बॉक्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। और स्काई बॉक्स में हम लोग एक बहुत बड़ा सा इमेज डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे, फिर से दिखाता हूँ, विंडोज पे मैं गया, यहाँ पे रेंडरिंग एक ऑप्शन आ रहा है। रेंडरिंग में लाइट सेटिंग्स ऑप्शन आ रहा है। लाइट सेटिंग्स ऑप्शन में पहला जो सीन मोड है, सीन मोड में स्काई बॉक्स मटेरियल है। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दिखा रहा है ये, Yes, sir. Sir, I have जो a कि आज project तक मैंने बनाया था। that said लाल there हरा, was a material called sir Skybox. हाँ। सो यहाँ पे हाँ, पहले से डिफॉल्ट स्काई बॉक्स ये सिलेक्टेड है और यहाँ पे सारे मटेरियल्स दिखाता है जो हमने बनाया था। जैसे लाल हरा पीला, अभी जो रोड बना है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, और भी जितने भी पहले से पड़े हुए हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये सब मटेरियल्स तो यूज हमें करना नहीं चाहिए, यहाँ पे स्काई बॉक्स ही मटेरियल यूज करना चाहिए। तो जस्ट मैं स्काई बॉक्स सर्च कर देता हूँ, तो स्काई बॉक्स नाम का सिर्फ एक ही है जो कि डिफॉल्ट एक पड़ा हुआ है, वो हमें दिख रहा है। तो इंस्टेड ऑफ दिस डिफॉल्ट स्काई बॉक्स, मैंने यहाँ पे एक सुंदर सा स्काई बॉक्स यूज किया है। Sir, how we can import that? हाँ, वेट रुक जाओ। तो विंडोज पे रेंडरिंग पे लाइट सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पे है, और यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करते ही वो सारे दिखेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोजेक्ट में स्काई बॉक्स एक ही है, वो भी डिफॉल्ट है, जो कि ऐसा दिख रहा है, जो कि बहुत ही बकवास तरह है। तो चाहिए मिलेगा कैसे? तो उसका सर रुक जाओ, वेट लेट मी कंप्लीट। तो उसके लिए आसान तरीका ये होता है एसेट स्टोर। सर कैन यू शो अबाउट स्काई बॉक्स? रुक जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके जैसा मैंने तुम्हें तरीका बताया था, still loading, okay, I'll search for
स्काई बॉक्स, और स्काई बॉक्स सर्च करते बहुत सारे स्काई बॉक्स आ जाएंगे। एक बहुत बड़ा इमेज होता है काइंड ऑफ सिक्स फेसिंग, तो बहुत सारे स्काई बॉक्सेस मिल जाएंगे तुम्हें। मैंने कोई एक वो लिया था जिसका साइज बहुत कम हो, जैसे ये ले लेते हैं अभी के लिए। इसका साइज भी 95 MB है, बहुत बड़ा है ये बहुत ही हाई क्वालिटी वाला इमेज होता है, इसलिए इसका साइज मोस्टली हमेशा ज्यादा ही होता है। ये तो ज्यादा ही हो गया। इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे ये स्काई बॉक्सेस हैं या फिर बहुत सारे इमेजेस हैं। मुझे कुछ छोटा सा चाहिए, कोई तो छोटा सा हो। ये छोटा है क्या? हाँ, ये 18 MB है, उतना भी सुंदर है नहीं। चलो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐड टू माई एसेट्स, 18 MB का है और ये सब पे काम भी करेगा। ओपन इन यूनिटी एडिटर। ठीक है, ये स्काई बॉक्स था, यहाँ भी उसका डिटेल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्काई बॉक्स है ये सब पे काम करेगा। यूनिटी जो ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 के बाद जितने भी आए हैं सब पे काम करेगा, तो ओल्ड वालों के लिए भी काम करेगा, न्यू वालों के लिए। और इसका साइज काफी कम है। लेट मी डाउनलोड, तो फास्ट हो जाएगा ये। जस्ट टू सेव टाइम आई एम डाउनलोडिंग अ स्मॉल साइज, बड़े वाले में टाइम लगेगा। इंपोर्ट, और ये इंपोर्ट आई थिंक हो चुका है। सो इस फोल्डर में आया, SKYB1 करके फोल्डर में आ चुका है। अब क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा विंडोज, रेंडरिंग, लाइट सेटिंग्स, यहाँ पे सीन्स टैब सिलेक्टेड है, बहुत सारे टैब्स होंगे। सीन टैब सिलेक्टेड है, उसमें से जो स्काई बॉक्स मटेरियल है, मैं स्पेसिफिक डॉट्स पे क्लिक करूंगा और फिर से इस पर सर्च कर लूंगा SKY। अब एक नया और दिख रहा है, पहले से डिफॉल्ट दिख रहा था स्काई बॉक्स, अब ये नया सा दिख रहा है जो कि अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा यू कैन चेंज योर एनवायरनमेंट। सो आई हैव आवर हाईवे रेडी। सर हम लोग खुद स्काई बॉक्स नहीं बना सकते? बना सकते हैं, एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है और 6 फेस का होता है, तुम बना भी सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया है क्योंकि जितना मुझे चाहिए वो मिल जाता है ऑलमोस्ट, बट यस यू कैन क्रिएट इट। In fact, if the time permits, I will show you how to create your own. Not today, maybe later sometime. तो ये मेरा सीन लगभग तैयार हो गया है। अब एक और चीज लास्ट सीखेंगे हम लोग, या फिर दो चीज सीखेंगे। एक तो ये जो कार था, इस कार में जो लाइट है ना, बहुत ही घटिया दिख रहा है। कार का लाइट एक अलग ही शो होता है, बट इतना घटिया दिख रहा है। घटिया क्यों दिख रहा है? आई थिंक सबका शायद ऐसा ही दिख रहा होगा, जिनका ऐसा नहीं दिख रहा वो बहुत अच्छी बात है, बट सबका ऐसा ही दिख रहा होगा। हो क्या रहा है कि यहाँ पर ना ये एक मटेरियल से बना हुआ है। दिस ग्लास is made up of one material and this material is not supported by our system or our Unity. इसका नाम लाइट्स ग्लास है, मटेरियल का नाम। ठीक है, उसका डिटेल्स यहाँ भी दिख रहा है। बाय द वे, जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं, ये मैंने 2 प्लेन्स लगाए हैं, प्लेन 1 एंड प्लेन 2। अगर इसे देखा जाए तो इसमें हमने एक मटेरियल ऐड किया था, और वो मटेरियल यू कैन सी इट, दिस इज रोड साइड मटेरियल दैट वी एडेड। पहले वाले में हमने मेन रोड मटेरियल ऐड किया था, तो इंस्पेक्टर में वो भी डिटेल्स हमें दिखाई देता है, यू कैन एक्सपैंड इट एंड कोलैप्स इट। और यहाँ पे उस मटेरियल का जो रोड साइड मटेरियल है, उसमें एल्बिडो में हमने जो डाला था मटेरियल, वो भी सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। इसको एक्सपैंड करूंगा मैं, तो उसमें ये हमने इमेज डाला था और वो दिख रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, लाइक टाइलिंग में हमने 2 टाइम्स किया था, 20 टाइम्स किया था, वो सब कुछ दिख रहा होगा। इसमें भी इसका, चलो इसका टाइलिंग थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। नहीं, ऑलरेडी है क्या? ठीक है। सिंस इसका साइज काफी बड़ा था, एक्स का साइज हमने 4 रखा था सर, तो इसे 4 रखते थे। अब थोड़ा बेटर कॉन्क्रीट दिख रहा है, ये पहले खिंचा हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो तुम्हारा जो भी तुमने मटेरियल अप्लाई किया है, वो मटेरियल तुम इंस्पेक्टर विंडो में यहाँ पे देख सकते हो, एंड यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। तो अब हम लोग सेम काम करने वाले इस कार के साथ। कार में एक ग्लास नाम का मटेरियल है। ओके, और ये जो ग्लासेस हैं, ये कुछ तो दिख रहा है, ये रेडिश जो भी है, ये ऐसा इसलिए दिख रहा है। और यूनिटी में जब भी हम लोग गेम बनाते हैं, लगभग जो भी चीज सपोर्ट नहीं करती है पुराने और नए में, तो ऐसा ही अजीब सा दिखता है। उसे ठीक कैसे किया जाए? तो ठीक करने का तरीका क्या है कि
अब ये सब थोड़ा आई डोंट नो, आई वांटेड टू स्किप इट बिकॉज कई बार किसी यूनिटी में सपोर्ट करेगा किसी में नहीं करेगा, कैसा हो सकता है। तो यहाँ पे तुम लोग देखोगे शेडर नाम है, सब लोग ये चीज ट्राई कर सकते हो, पहले देख लेना फिर ट्राई करना। मैंने कार मॉडल में ग्लास सिलेक्ट किया है, ग्लास सिलेक्ट करके सबसे नीचे में आ रहा है लाइट्स ग्लास। अभी सिर्फ सब लोग देखो लाइट्स ग्लास में शेडर है, शेडर में इसमें ऑलरेडी जो सिलेक्टेड आ रहा है वो हार्ड सरफेस समथिंग समथिंग करके आ रहा है, और ये सपोर्टेड नहीं है इसलिए ऐसा अजीब सा दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो सपोर्टेड है विच इज स्टैंडर्ड, जो सपोर्टेड है वो स्टैंडर्ड है, तो मैं स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर लूंगा। और स्टैंडर्ड सिलेक्ट करती है अजीब सा हो गया, और भी खराब हो गया लग रहा है, या फिर पता नहीं खराब Sir, like that, sir, we can make our cars fancy. होल्ड ऑन मैं आता हूँ। तो मैंने लाइट ग्लास को स्टैंडर्ड कर दिया, ठीक है। सॉरी शेडर्स जो था, शेडर्स में पहले ये हार्ड सरफेस समथिंग जो भी सिलेक्टेड था, ये हार्ड सरफेस मैंने उसे हटा के स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब ये कुछ और भी अजीब सा हो गया, मजा ही नहीं आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिंस जो ग्लासेस होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो एक और चीज तुम देखोगे लाइट ग्लास में रेंडरिंग जो मोड है वो ओपेक पे पड़ा हुआ है, इसे मैं हटा के ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा शायद। ठीक है, अब आते हैं कलर मोड पे। कलर मोड को यहाँ पे इसका जो अल्फा वैल्यू है, दिस इज कॉल्ड अल्फा वैल्यू, मैं इसे घटा के 30 कर देता हूँ, और मे बी कलर को ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर है, आई थिंक दिस इज लुकिंग ट्रांसपेरेंट। सो पहले का अगर देखा जाए, जो हमारा जो भी रेडिस था बकवास था, उसके जगह पे ये काफी बेटर लग रहा है। नाउ इट इज ट्रांसपेरेंट एंड यू कैन सी द बल्ब्स इनसाइड, and Yes, sir. this will look more better if you add some lights to it, which is what I did, and that will be your homework. So ये पहले से तो कई ज्यादा बेटर है। Sir, how to add? अभी हाँ मैं बताता हूँ। तो आगे में तुम लोग स्पॉटलाइट ऐड करोगे। स्पॉटलाइट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, हाउ टू ऐड स्पॉटलाइट एंड ऑल दोस थिंग्स, सो यू विल डू दैट। ठीक है, ये पार्ट अगर किसी को समझ में नहीं आया, फिर मिस कर गए, इट्स ओके, तुम लोग वीडियो देख लेना। यहाँ पे जैसे मटेरियल फोल्डर है, तुम अपना मटेरियल बना दो एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, क्योंकि हम लोग जो नया मटेरियल बनाते हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड ही रखता है। इसमें अब हम लोग मेटालिक डालेंगे तो मेटालिक लुक आएगा, तो बेटर यही है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। ठीक है, अपना मटेरियल बनाओ एंड जस्ट ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट, ड्रैग एंड ड्रॉप कलर चेंज करने के लिए। तो अगर अब देखो तो थोड़ा सा कार में साइन आ गया, पहले तो कार काफी डल था, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आ चुका है मिरर्स। अब यहाँ पे लाइट जलाएंगे तो और भी फैन और भी अच्छा लगेगा ये। ठीक है, ये सब तुम लोग खुद से कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। रोड भी हमने बना दिया ऑलमोस्ट, हाईवे हमारा तैयार हो रहा है। लास्ट टाइम मैंने प्रीफेस का कॉन्सेप्ट बताया था और वीडियो में डाला था, आई होप तुम सबने देखा था इसे, या फिर नहीं? यस सर, देखा था। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज, चलो इसे डिलीट करता हूँ अभी के लिए। तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बनाते हैं और उसे, या फिर नया ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाते हैं, उसको तुम यहाँ पे इस फोल्डर में डालते हो तो एक प्रीफैब बन जाता है। प्रीफैब बनने का फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर मैं दूसरे सीन में जाना चाहता हूँ तो वहां पे कंट्रोल डी यहाँ तो चलता है, बट वहां कंट्रोल डी कैसे करोगे? तो अगर मैं नाइट सीन पे गया तो अब मैं प्रीफैब फोल्डर से इसे उठा के वापस ला सकता हूँ। ठीक है, अगर रोड के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रीट लाइट तो बहुत ही छोटा रह जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो स्केल है हाइट का, इसको अगर मैं 2 कर देता हूँ तो थोड़ा बेटर है, काफी थोड़ा ऊंचा हो गया ये। ठीक है, इसका स्केल मैंने 2 कर दिया, और स्ट्रीट लाइट तो और भी दिखना बंद हो गया। इसमें भी डायरेक्शनल लाइट्स है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी मैं घटा के 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, एक और चीज है, तुमने जब स्ट्रीट लाइट बनाया
और उसको यूज कर रहे हो एंड देन लेटर आई रियलाइज कि यहाँ पे लाइट बहुत कम आ रहा है, व्हिच आई जस्ट रियलाइज मैं इसका लाइट बढ़ाने वाला हूँ, पॉइंट इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने वाला हूँ। तो इसकी इंटेंसिटी में ओके कुछ और ही गड़बड़ है, रेंज बढ़ाना होगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज गुड एनफ। यहाँ से रोड जाएगा तो अच्छे से दिखेगा। ओके आई मेक इट 15 और इंटेंसिटी 4 इज फाइन आई थिंक। इंटेंसिटी 5 परफेक्ट है। नहीं 4 सही है इस रोड के हिसाब से, आई थिंक दिस इज फाइन। ठीक है, अब इस लाइट को देखा जाए सीन में ऐसे, bring it down, but और मैं इसके राउंड कैमरा अलाइन कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे विद व्यू। तो अगर लाइट को देखा जाए तो लाइट के पास तो एकदम अंधेरा सा दिख रहा है, नीचे में लाइट है बट ऊपर तो स्ट्रीट लाइट एकदम अंधेरा सा है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो इसका तरीका क्या है? यहाँ पे हमने एक स्फीयर ऐड किया था और स्फीयर को फिर रीसाइज किया था, लाइट सपोर्ट एंड लाइट प्लेट, और लाइट प्लेट के अंदर स्पॉटलाइट है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और स्फीयर ऐड कर दूंगा। ठीक है, स्फीयर का साइज लगभग वैसा ही है, इसे स्केल टूल यूज करके थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे एक लाइट मतलब 2 स्पेस दिख रहे होंगे ओवरलैपिंग ऑन ईच अदर। इसका एक्स थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अभी के लिए मैं स्पॉटलाइट हटा रहा हूँ, दिस इज डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो ये मेरा लाइट है, स्फीयर मैंने ऐड किया है, इसका x I will make it 9.9 and z also I will make it 0.9 से 0.9 निकाल देते हैं। ठीक है, I don't know how it looks. Okay, manageable. ठीक है, अब इसमें ग्लो लाना है। ग्लो लाते कैसे हैं? ग्लो लाने के लिए भी हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, बट वो मटेरियल स्पेशल टाइप के मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल्स ग्लो करते हैं। तो एक ग्लोइंग मटेरियल कैसे बनाया जाए? तो सबसे पहले तो तुम्हें मटेरियल बना देना है, इसे लिख देना है, इसका नाम मैं देता हूँ ग्लो। चलो ग्लो नाम देते हैं, ग्लो मटेरियल। ग्लो नाम मैंने दे तो दिया, अब ये ग्लो करे कैसे? तो सबसे पहले तो इसे व्हाइट है, सब कुछ सही है, इसमें ग्लो लाना है। ग्लो लाने के लिए तरीका होता है इमिशन, इज अ फील्ड कॉल्ड इमिशन, और इसे मैंने सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पे ग्लोइंग कलर क्या चाहिए मुझे, तो ग्लोइंग कलर अगर मान लो येलो चाहिए, बट मुझे येलो पसंद नहीं, मतलब यहाँ पे व्हाइट वाला स्ट्रीट लाइट ही पसंद है मुझे ज्यादा, तो मैंने ये लाइट चुना। ठीक है, और इसे पकड़ के यहाँ चिपका दो। अब देखा जाए अपने स्ट्रीट लाइट को यहाँ पे, तो ग्लो दिख रहा है। ठीक है, और ये मैंने सर हटा इसके दिया लिए तो हम विदाउट वो ग्लो के फॉर्मूला से कर सकते हैं ना सर? Only विदाउट ग्लो we can make a material and make it white and we can paste it. चलो सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चलो इसे देख लेते हैं। तो ये था मेरा स्फीयर, उस पर मैंने ग्लो मटेरियल लगा दिया है, उसको हम लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं एंड आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर आल्सो। तो तुम कहती थी एमिशन हटा दो, तो मैंने हटा दिया। व्हाइट व्हाइट तब दिखता है जब उस पर तुम टॉर्च जलाओ। अगर तुम एक बंद अंधेरे रूम में जाती हो और उसमें व्हाइट सामान है या ब्लैक पेपर है या व्हाइट पेपर है, कुछ नहीं पता चलेगा अनलेस यू पुट अ लाइट ऑन इट। But there are some materials which glow itself, and to make a glowing material you need to have, जबकि यहाँ से कलर व्हाइट ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है बट स्टिल ये व्हाइट नहीं दिख रहा है। तुम्हें ग्लो लाना है, you have to add emission so that this will become an emissive material, and no matter if you put a light on it or not, it will be glowing. Sir, and I created this street light and added to prefabs.
And if we make any changes in the street light, will it be safe to the prefab? नहीं, गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड नहीं, ऐसा होता नहीं है, तुम्हें खुद से कुछ करना होगा। तो करना क्या होता है, जैसे ये था स्ट्रीट लाइट, इसमें मैंने न जाने क्या क्या एक स्फेयर लगा दिया, न जाने क्या क्या चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ पे अगर तुम सिलेक्ट करते हो मटेरियल को, एक एरो भी बना होता है यहाँ पे, प्रीफैब्स, ओपन, सेलेक्ट एंड ओवरराइट एक बटन है। ओवरराइट पे क्लिक करो तो ये बताएगा तुमने एक्स्ट्रा क्या क्या कर दिया। तुमने एक लाइट लगा दिया, स्पॉटलाइट लाइट, स्फेयर लगा दिया और ट्रांसफॉर्म में कुछ कुछ चेंज कर दिया, सारे दिखाता है यहाँ पे। अगर मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूँ ओवरराइट्स पे जाके, वो सारे चेंज दिखाएगा। फिर अगर मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करता हूँ तब ये जो चेंजेस जो मैंने इस पे किए वो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, इंक्लूडिंग दिस प्रीफैब एज वेल। ठीक है, अब मैं एक और ऐड करता हूँ स्ट्रीट लाइट, तो इसमें भी वो लाइट इफेक्ट है, ग्लो इफेक्ट, क्योंकि अप्लाई ऑल मैंने कर दिया था। ठीक है, अब एक और काम करते हैं। अभी दिख रहा है तो ये तो लाइट तो है, बट वो जो ग्लो आता है, ग्लो जो मेरे इसमें था, दिस इज ग्लोइंग, बट एक एनवायरनमेंट भी ग्लो इफेक्ट आ रहा था। लैपटॉप शट डाउन हो चुका होगा, वो कैसे लाएं? एक या फिर कार का पीछे वाला शीशा ले लो। पीछे वाला जो शीशा होता है वो स्पॉटलाइट नहीं होता है, कार का पीछे वाला शीशा, बट इट स्टिल गिव्स सम ग्लोइंग इफेक्ट, कुछ तो लाइट देता है। तो वो लाइट कैसे ऐड करें? तो उसके लिए एक और चीज मैं ऐड करने जा रहा हूँ, एंड दैट विल बी अ पॉइंट लाइट। मैंने पॉइंट लाइट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लाइट का ओके ओके ओके, ये इतना बड़ा रेंज दिखा रहा है पॉइंट लाइट का। इतना बड़ा रेंज नहीं चाहिए, छोटा सा रेंज चाहिए, बहुत ही कम, मे बी 0.5 0.5। I'll just remove this for now, and in the point light इसे मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस करूंगा। अब तुम्हें पता है ना ये पार्ट, दिस पे। ओके सर। ठीक है, तो मैंने पॉइंट लाइट ऐड किया, इसका रेंज मैंने बहुत घटा के 0.5 कर दिया है। अब इसमें और यहाँ पे इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, इनडायरेक्ट मल्टीप्लायर था, इसे मैंने 0 कर दिया, ये काम भी नहीं करता है, इसे मैंने 0 कर दिया। इसकी इंटेंसिटी मैं बढ़ा सकता हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा तो ये बहुत सारा लाइट, पहले तो रेंज बढ़ाना होगा। चलो रेंज एक पल के लिए 50 कर देते हैं, और इसकी इंटेंसिटी मैं 13 कर दी। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे बहुत ज़्यादा ब्राइट होते जाएगा, और कम करते जाएंगे तो ब्राइटनेस कम होती जाएगी इस पॉइंट लाइट की। ठीक है, बट इसकी इंटेंसिटी 1 ही रहने देते हैं, इसका 0.5 रहने देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। वेट वेट वेट, अब यहाँ पे एक कमाल का चीज है, ड्रॉ हैलो। ड्रॉ हैलो इसे डालते एक, यहाँ पे देखो हैलोजन इफेक्ट कुछ तो आ गया है। अब लग रहा है कि ये प्रॉपर लाइट जल रहा है और कुछ इमिशन हो रहा है लाइट का। मतलब ठंड के टाइम में लाइट्स को देखना वैसा इफेक्ट हल्का सा आता है। अब यहाँ पे लग रहा है प्रॉपर लाइट जल रहा है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, जैसे कि ये हटा दिया जाए स्फेयर, और ये भी हटा देता हूँ, तो ये पहले हमारा ऐसा लाइट था जो कि बड़ा ही बकवास था। मतलब ठीक है, लाइट तो दे रहा है बट जली लगी नहीं, लाइट जल भी रहा है। हमने इसमें स्फेयर एक ऐड किया छोटा सा, और इसमें एक मटेरियल डाला है, ग्लोइंग मटेरियल। अब ये ग्लो कर रहा है, बट फिर भी ये डालने से प्रॉपर एक ग्लो इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, सच में स्ट्रीट लाइट चल रहा हो।